सभी को नमस्कार। ठीक लग रहा है? आनंद आ रहा है? चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग, न्यू रोल, फियर ऑफ द अननोन इज ऑल्सो देयर। यस और नो? होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। Anybody says doesn't have is a big risk for the bank. Let me first start with that point. Fear is good or bad? So what I will be doing is certain aspects from the domain that I am looking at, we will discuss. That you should be knowing the expectations as a circle head. And then certain aspect I will discuss with you in terms of which is my experience as leadership, which I feel would be helpful to you. So we will have a mix of the two, or everybody will be comfortable with English and Hindi, I suppose. ठीक रहेगा? चलिए, तो पहले मैं यही प्रश्न पूछता हूँ, फियर इज गुड और बैड? क्यों गुड है भाई? काम ही नहीं करेंगे, सब बोल देते हैं सर क्रेडिट से बहुत डर लगता है, फियर है। क्या चीज है? कंट्रोल में गाड़ी चलाने के लिए, वो है फियर। So it is good or bad? I totally agree with what you are saying. First is, please understand, fear is good because fear protects you. और जिसके पास फियर नहीं होगा वही लोग टीनेजर्स, हमने आपने भी जब टीनेज थे तो स्कूटर, बड़े भाई का स्कूटर मिल गया तो लेके चल दिए, और कभी पापा की कार मिल गई तो फिर तो 100-150 पे चल दिए। बट was that good? Now when we look back, excess of fear is bad. Fear is good, but fear paralysis out of fear is bad. As a circle head, that becomes the first part that we all need to understand. और जब आप एज अ सर्किल हेड डिसीजन लेते हो, लोगे, और एज अ लीडर जो आपके ब्रांच हेड्स हैं, जो आपके बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं आपके रिस्पेक्टिव सर्किल में, उनको वो कॉन्फिडेंस दोगे डिसीजन लेने का। सो व्हेन आई एम यूजिंग दैट जेनेरिक वर्ड ऑफ फियर, आई एम टॉकिंग ऑफ यू एज एन इंडिविजुअल, and then I am talking of you as a leader. तो जब आप वो कॉन्फिडेंस दोगे, and you would be a disciplinary authority also for some people, correct? So your ability to distinguish in terms of where you would like to give confidence to your people, confidence to your juniors, your colleagues, support them when they make a mistake. Everybody makes mistakes. Rest assured, there is not a single individual in this world who has never made a mistake. और हम सब जहां भी पहुंचे हैं, जहां आगे जाने की आकांक्षाएं रखते हैं, there is always a learning, there is always a learning curve. So let me this part stop with one sentence: everyone deserves a second chance. Everyone deserves a second chance. As a leader, give that second chance. Now I come to certain aspects of domain. Then I'll come back to the aspect of leadership in slightly more detail as what I feel about what I have experienced. इसका वो कहाँ है?
3 स्लाइड्स हैं मात्र। एक स्लाइड तो ये है, वी विल डिस्कस इट। एक स्लाइड ये है और एक स्लाइड ये है। मात्र 3 स्लाइड्स हैं। First, let me discuss from the domain perspective. अभी दोबारा लगा लेंगे बाद में। तो बंद कर लीजिएगा। First, let me discuss from the domain perspective. So, last 3 years, our bank amalgamation, challenge of amalgamation, challenge of COVID, and we have all worked together, we have all struggled together, and we have all together been successful in overcoming those challenges. And we have all together ensured a very strong base. तो जिस मकान की नींव स्ट्रांग होती है, सबसे पहले तो नींव डालते हैं ना, और जब नींव आप अच्छे से खोद के अच्छे से डालते हो, स्ट्रांग नींव डालते हो, तब आप ऑटोमेटिकली उस पे स्ट्रांग इमारत बना पाते हो। अग्री करेंगे? सो टुगेदर वी हैव ऑल come out successful through the challenges, and we have really made a very strong base in PNB 2.0. And automatically we have started seeing the benefits of the efforts that we have all put together. Our March 23 balance sheet is a very clear prime example of the positivity, of the growth, of the potential, and as our MD talks about, current financial year 2023-24, building on that base, it becomes a golden year. और आप लोग as circle head, you have a great opportunity to contribute to the organization. You have a great opportunity for your career growth, corporate hierarchy growth, for your own achievements, for having pride in your achievements that you would be doing to the organization and to yourself. जैसे लेकिन मेरे एक साथी ने बोला, ग्रोथ विथ कंप्लायंस। जनरली जब भी आप एज सर्किल हेड रिव्यू लोगे अपने ब्रांच हेड्स का, या जब आपके जोनल हेड आपका रिव्यू लेंगे, आई एम अज्यूमिंग कि ऑलरेडी जोनल हेड ने जाके आपकी रिव्यू मीटिंग कर ली होगी अब तक, यस और नो? सो and earlier when you were branch heads, in general the legacy, the culture, the practice in the organization has been, we talk of numbers, we talk of quantity, we talk of achievements, and we always talk in terms of quantity. The concept of quality is never explicitly talked about. And that's why I'm specifically using the word compliance.
quality as a word, quality as a matter of emphasis is only and only talked about either in terms of inspection and audit or as a faculty member in the staff college. Agree करेंगे मेरे से? Agree करेंगे? तो मेरा आपसे सबसे पहले यही आग्रह है, और मैं आग्रह वर्ड पर्पसली अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, आप लोग फर्स्ट टाइम सर्किल हेड्स हो, कृपया उस कल्चर को चेंज करें. At all points of time, sustainable growth. At all points of time, quantity and quality have to go together. One cannot be at the cost of another. Both have to go together. अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हो तो ये जो कचरा दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा. और जब आप क्वालिटी और क्वांटिटी की साथ में बात करते हो तब क्वालिटी भी मेंटेन होगी, और जब क्वालिटी भी मेंटेन होगी तो रेस्ट एश्योर्ड क्वांटिटी भी इंप्रूव होगी. लेकिन अगर आप, जैसे मैंने फियर की बात की और पैरालिसिस ऑफ फियर, क्वालिटी इज गुड, बट द मोमेंट यू गेट ऑब्सेस्ड विद इट और कॉमा फुल स्टॉप निकालने लगे, हमने कई साथियों को देखा है, देन दैट इज नॉट गुड. आर वी टुगेदर ऑन दैट पॉइंट? So the ability to understand and ability to differentiate, जिसको हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, आपको एज लीडर्स एम्फसाइज करना है. और मैं दोबारा वर्ड बोल रहा हूं, आग्रह, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर चेंज. ये जो फोटोग्राफ है, आप जब ब्रांच हेड थे, आज सर्किल हेड है, आप इसको लेफ्ट टू राइट देखिए या राइट टू लेफ्ट देखिए, फोटोग्राफ्स आर द सेम. आप लेफ्ट टू राइट देखिए या राइट टू लेफ्ट देखिए, योर कंट्रीब्यूशन, या मैं एक वर्ड को कंट्रीब्यूशन को चेंज कर देता हूं, ओमिशन एंड कमीशंस. नॉर्मली EON-OE दूसरे सेंस में यूज होता है, बट मैं यहां पे योर एक्टिव कंट्रीब्यूशन कमीशन, योर इनएक्टिव कंट्रीब्यूशन ओमिशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जो आपकी फोटोग्राफ है, इसमें आपको कौन सी फोटोग्राफ बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, विच वन इज द वन दैट यू वुड प्रेफर टू हैव? Pardon? Obviously the one which is neat, clean, manicured. Obviously the one. Is it not? But to have neat, clean and manicured, there is lot of efforts required in the center. और जब आपकी नीट क्लीन मैनिक्योर्ड होगी, जस्ट टेकिंग दैट एज ए फोटोग्राफ, आपके पास, अब ये पार्क है, पार्क में आप और हम सब घूमने जाते हैं, बहुत लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जाते हैं, तो जो ये आपका राइट साइड वाली फोटो है, नीट क्लीन मैनिक्योर्ड, इसमें जो लोग आएंगे घूमने वर्सेस जो लेफ्ट साइड वाली फोटोग्राफ है, वहां पे भी डेफिनेटली लोग आएंगे, बट वो सेगमेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा. और क्या आपको लगता है दोनों सेगमेंट में कौन सा बेहतर सेगमेंट होगा? पार्डन? नीट क्लीन मैनिक्योर्ड में. एंड जो हम और आप जा रहे हैं पार्क में, वी आर दी कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट टू दैट पार्क.
और उस पार्क को मेंटेन या ना मेंटेन करने वाला वहां के गार्डनर्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब वो गार्डनर सही काम करते हैं तो फोटोग्राफ आपकी लेफ्ट से राइट में मूव करती है एंड यू हैव अ नीट क्लीन मैनिक्योर्ड गार्डन एंड ऑल गुड कस्टमर्स, संभ्रांत लोग, अच्छे घर के लोग वहां पे आएंगे और उसका फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव बिजनेस देंगे। और अगर वो व्यक्ति या तो काम नहीं करते ओमिशन या गलत काम करते हैं कमीशन, तो अच्छी से अच्छी ब्रांच, अच्छे से अच्छा बैंक, अच्छे से अच्छा सर्किल, अच्छे से अच्छा पार्क थोड़े दिनों में जंगल की तरफ बन जाएगा। और फिर वहां पे भी कस्टमर्स आते हैं और वो किस कैटेगरी के होंगे? डू वी वांट दोस कस्टमर्स इन आवर बैंक? Do we want customers like the one who would go into a jungle? No. इसलिए please ensure enforcement of quality and quantity. तो जो भी आप खुद कार्य करिए, जब भी आप विचार करिए, विमर्श करिए, जब भी आप रिव्यू करिए, at all points of time, talk of the two together. Are we clear on that point? Essentially, compliance is an investment. Compliance is an investment. हमारे बोर्ड का एक डायरेक्शन भी है बिल्कुल क्लियर कि हर मीटिंग में एज सर्किल हेड, वो हमने डायरेक्शन जोनल हेड्स को भी दे रखा है। एज अ सर्किल हेड द डायरेक्शन इज टू यू ऑल्सो। इन एवरी मीटिंग यू हैव टू स्पेसिफिकली एंड एक्सप्लिसिटली talk about compliance, talk about sustainable growth, talk about the bank should always be known as a compliant bank. Under no circumstances I want that my bank's name should come in a media or anywhere as non-compliant. Are we together on that point? और जब ये चीज मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, इस फोटोग्राफ को यहां रख रहा हूं, एक अंडरलाइन फैक्टर है जो मैंने शुरू में किया, फियर। एक अंडरलाइन फैक्टर है कि मेरा स्टाफ, मेरा बैंक, मेरा स्टाफ, मैं, मेरा स्टाफ, मेरा बैंक, everybody is safe. And that is what we want. Yes or no? We want to be safe. Yes or no? We want the bank to be strong. We want the bank to grow. So ensure that the assurance functions of the bank, when we use the word assurance functions, essentially we are talking of compliance, risk management, inspection, audit. All the three functions in your circle are given due recognition, due respect. Due recognition, due respect. And I am using the word due. Quantity and quality both have to go together. That is why the word due. Theory and practice of banking. कई बार आपको बिल्कुल ठीक बोला कैलकुलेटेड रिस्क, और वहां पे कैलकुलेटेड रिस्क लेते समय कैलकुलेशन करिए कि आप जो रिस्क ले रहे हो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू रिकॉग्निशन टू द एश्योरेंस फंक्शंस एंड देन मूव फॉरवर्ड। और ये जब मैं आपको बात बोल रहा हूं, मैं दोबारा आऊंगा जब मैं लीडरशिप वाला क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, बिकॉज इट इज नॉट यू एज एन इंडिविजुअल ओनली, it is you as a leader. What message are you sending down the line? Till now, till you have never been a circle head, till now you are functioning more as an individual. But as circle heads, zonal head, head office, it is more as leadership.
डोमेन से एक और पॉइंट, लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट दिस ओनली, इज एक कंप्लायंस मॉनिटरिंग टूल हमारे बैंक ने अभी 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट किया है. आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट, हैव एक्सपीरियंस्ड वर्किंग ऑन इट. आई एम अज्यूमिंग दैट. और जो ये 1 अप्रैल से कंप्लायंस मॉनिटरिंग टूल इंप्लीमेंट किया गया है, इसका लिंकेज भी परफॉर्मेंस अप्रेजल से डायरेक्टली करा गया है. Essentially, we want, as I said, bank to be known as a compliant bank, and यहाँ पे every staff member is supposed to enter the levels of compliance. We trust our people, we have belief in our people that they would be genuinely putting the data there. And as circle heads, मेरा आपको क्लियर निर्देश है, पहले आग्रह था, अभी निर्देश है, ensure that trust is not broken. Do good, do actually good, and then report that goodness in the compliance monitoring tool. तभी और सिर्फ तभी bank as a whole we will be able to have a larger picture before the regulator RBI and the owner Government of India, and with data we can confirm to them that yes, we are a compliant bank. जो कंप्लायंस मॉनिटरिंग टूल है, बहुत मेहनत की गई है हमारे साथियों की, जिन्होंने डेवलप किया है यहाँ पे कंप्लायंस डिवीजन में, आईटी डिवीजन के साथ बहुत सोच विचार किया गया है. और क्योंकि ये पहला साल है और अभी हम शुरू कर रहे हैं, अगर इसको सही तरीके से आप शुरू करवाएंगे, गोइंग फॉरवर्ड बैंक के लिए बहुत ही सशक्त और इंपॉर्टेंट टूल होगा. और मैं इस चीज को इसलिए भी एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि हमने सबने देखा है अर्लियर डेटा, इनवैलिड डेटा, इनकरेक्ट डेटा, इनकम्प्लीट डेटा, दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. और फिर वो आप री इन्वेंट करते हो व्हील को, बार बार हेड ऑफिस से फोन जाता है, बार बार हमारा टाइम वेस्ट होता है हेड ऑफिस में, आपका टाइम वेस्ट होता है डेटा क्लिनजिंग में, डेटा कंप्लीशन में. यस और नो? इसलिए जो हम नई चीज अपने बैंक में लगा रहे हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग ईच वन ऑफ अस इज ऑन द सेम टीम ऑफ इंश्योरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, मेकिंग अ बैंक स्ट्रांग, इस डेटाबेस को हम जेन्युइनली एंट्री, डेवलप, मेंटेन करेंगे. Another aspect, currency chest, there are lot of issues which are coming. जहां जहां आपके पास करेंसी चेस्ट हैं, उस पे जरा काइंडली स्पेशल ध्यान दीजिएगा. और काफी पेनाल्टीज भी लगाई हैं रिजर्व बैंक ने, तो स्पेशली करेंसी चेस्ट पे काफी ध्यान दीजिए. इंश्योर करिए जो भी कार्य हो रहा है सही तरीके से हो रहा है. And this brings me directly to this concept of 2000 rupee notes also. बिल्कुल क्लियर है मेरा तो आइडिया. अपने साथियों को बोलिए 2 बार चेक करें, 3 बार चेक करें, 5 बार चेक करें, फेक नोट मत लो. केवाईसी, ओवीडी, वो सब आरबीआई ने नहीं बोला है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम बस कमिंग फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ बैंक ले रहे हैं, हमारा बैंक नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से रिलेटिव टू जो बैंक ले रहे हैं, कस्टमर्स कम टू अस एंड दे हैव अ राइट टू. अपने साथियों को सेफ रखिए, अपने बैंक को सेफ रखिए. वी विल नॉट आस्क द ओवीडी एटसेट्रा, बट वी विल इंश्योर डबली, ट्रिपली, 4 टाइम्स कि हर नोट एक जेन्युइन नोट है. कल को वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बैंक के लिए और मेरे साथियों के लिए. आई एम जस्ट लिंकिंग द डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ योर ability as a leadership and what communication, what direction, what support, what sensitivity, what protection you have for your own colleagues. And show that concern, support to them. That gives them confidence in taking decisions.
एक ये बुकलेट आपको दी गई है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। जो रिस्क मैनेजमेंट में हमारे कुछ एक साथी हैं, दे आर डूइंग अ रियली वंडरफुल वर्क, एंड this is the slide which is talking in terms of certain periodicals that are coming from risk management. और जो हमने पाथ भी दे रखा है नॉलेज सेंटर में, आप क्योंकि आए हैं, वी हैव गिवन यू अ हार्ड कॉपी, बट इन जनरल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दी सॉफ्ट कॉपी। और एक सर्किल हेड्स को आपके पास ऑलरेडी आ रहा होगा, एक डेली इंडस्ट्री न्यूज़लेटर की ईमेल भी आती होगी आपके पास, आ रही है। तो जो मेरे साथी हैं आईआरएमडी में, बड़ा इंटेंसिव वर्क कराया है उन्होंने, और डेली बेसिस पे इंटेंसिव करके वो डेली न्यूज़लेटर आता है। लेकिन इस जैसे बुकलेट को देखिए, पीरियोडिकली व्हेन आई टॉक, इफ यू स्टार्ट रीडिंग इट, यू विल फाइंड द क्वांटम ऑफ नॉलेज, the forward looking technologies, the how the banking is going to change, all that is being brought in a nutshell to you. And जो आप में मेरे साथी हैं who have age on their side, aspirations in their mind, this becomes a very important source for you to upgrade yourself, update yourself, and prepare yourself for the future. इसलिए बिल्कुल क्लियर एम्फेसिस है, अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो जो ये पीरियोडिकल्स मेरा रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन निकाल रहा है, इसको जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। और जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने रिस्पेक्टिव सर्कल्स में, विद इन योर टर्म्स ऑफ रेफरेंस, विद इन योर पावर्स ऑफ रेफरेंस, try and start implementing it. That will be an innovation which will help you to get recognized by your seniors that you are doing something new, you are doing something innovative, you are doing something forward looking, and definitely in that process bringing new business to the organization. Are we together on that point? एक बैंक ने अर्ली वार्निंग सिस्टम, हमारे बैंक में काफ़ी सालों से है, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन इंप्लीमेंट करा है, जिसको पहले वर्जन को हम सजग बोलते थे। सो बाय डेफिनेशन नाउ दिस वर्जन इज नोन एज सजग 2.0. इट इज एन अपग्रेडेड वर्जन, इट हैज मोर डेटा पॉइंट्स, इट इज टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम many other sources, more than 100 data points compared to Sajag 1.0. Automatically it will help you in terms of early warning system, help you in terms of taking more appropriate decisions based on much more parameters than were known earlier for specific accounts. तो सजग 2.0 का यूज करिए अच्छे से। स्टाफ रोटेशन छोड़ दो भाई, चिंता नहीं करो। कई फ्रॉड्स आ रहे हैं नोटिस में, और उन फ्रॉड्स में एक जो बड़ी ही कंसर्न की बात आ रही है, स्टाफ इन्वॉल्वमेंट की। कई बार खुद विश्वास नहीं होता है कि हमारा स्टाफ ऐसे कैसे कर रहा है। तो as circle heads, specifically staff rotation, nobody in this world is indispensable. Be very clear about it, be very ruthless about it. आपके पास जितने भी प्रेशर्स आए, जितने भी रिक्वेस्ट आए, जो पॉलिसी में परमिटेड है, उस पॉलिसी में रह के जो आप किसी की बात सुन सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, करिए, जरूर करिए। पॉलिसी का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और स्टाफ के जो अकाउंट्स हैं,
प्लीज मेंटेन अ मॉनिटरिंग ओवर देम। ऐसे कई केसेस आ गए हैं नाउ, बिकॉज आई एम डोमेन ईडी, हमारे साथी बैठे हैं निखर साहब, यहाँ पे डिस्कशन हुआ एंड वी टुक अ वेरी क्लियर स्टैंड अगेंस्ट सर्किल हेड्स ऑल्सो, कि अगर कोई चीज किसी ब्रांच में हो रही थी और ब्लेटेंटली हो रही है और स्टाफ के अकाउंट के थ्रू हो रही है, is that person only responsible for it? What was the circle office doing? Senior officer visit hai, and I'm using the word senior officer visit, which means not only the circle head but other senior officers also in the circle. Periodical visit है, ensure करिए, visit करिए, ensure करिए online, offline, proper and in-depth monitoring of the staff accounts and the staff behavior, not only the accounts. Audit में एक curable, non-curable, you must be aware, we have brought that out about a year back. जो क्योरेबल नॉन क्योरेबल इरेगुलरिटीज हम लाए थे, उसमें जो बिल्कुल क्लियर इंटेंशन यही थी कि जितनी जल्दी हो सके इरेगुलरिटीज हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बंद हो और मेरा स्टाफ फ्री रहे, शुड नॉट गेट इनटू अननेसेसरली स्टाफ अकाउंटेबिलिटी, दैट इज द कंप्लीट इंटेंशन। इसलिए आपका भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो क्योरेबल हैं उनको क्योर करिए। अगर इंश्योरेंस नहीं लिया तो ले लीजिए, और फिर वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, देन इट बिकम नॉन क्योरेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो हमारी इंटेंशन थी, हम नहीं चाहते हैं किसी भी स्टाफ को स्टाफ साइड केस बनाना। कृपया ऑडिट डिवीजन की, इंस्पेक्शन डिवीजन की मदद करिए। आपका अपना एज अ सर्किल हेड फायदा है, बिकॉज देन यू आर एबल टू फोकस ऑन क्वालिटी बिजनेस, सस्टेनेबल ग्रोथ, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन trying to clean up the past. Especially the curable irregularities, we have given specific timelines, get it done. OSS alerts, again, one case has come and we have taken action against the circle head also. ब्रांच में फ्रॉड नजर आया, पता चला है, तो जब हमने उसके प्रीवियस 6 महीने के ओएसएस अलर्ट्स देखे, रेगुलर ओएसएस अलर्ट आ रहा है उसमें, और वो रूटीनली बंद किया जा रहा है। रेगुलर ओएसएस अलर्ट फॉर लास्ट 6 months. Head office does data analysis, there are certain parameters, the alerts get thrown up. My people in circle office are simply closing it. Can that be acceptable? Can that be acceptable? Please take care. And this case also, I have told, we will take action against the circle head. We will take action against those who are routinely closing, the desk officer and that जो उनका स्केल 4, 5 जो भी होगा, जो उसको मॉनिटर कर रहा होगा सीट को, not acceptable, because somewhere you need to ensure that certain office decorums and disciplines are maintained. As I said, quality. Please do it. एक स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पोर्टल बैंक ने डेवलप करा है, और उसको भी डेवलप करने का जो उद्देश्य था, हैव यू सीन दैट स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पोर्टल? आपका क्या फीडबैक है? इज इट फंक्शनिंग? निकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है उसको डेवलप करने में। एनालिसिस करी थी हमने, कितना 240 days plus it was coming, no? For any staff accountability from beginning to end was taking around 240 days.
and that is the smallest period I'm talking of, and then it used to go much higher depending on the intricacies and complexities involved. One of the deficiencies that we saw was manual working in the entire process at that point of time. So we went into automation, and our target was to bring that 240 days to 50 days. आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा उसमें भी, अपने स्टाफ को फ्री करिए. और जब मैं बोल रहा हूं अपने स्टाफ को फ्री करिए, हेलो माइक टेस्टिंग, ठीक है. जब मैं बोल रहा हूं अपने स्टाफ को फ्री करिए, बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन है. इट अप्लाइज टू ईच वन ऑफ अस. हम लोग क्यों बैंक में हैं? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज योर पर्पस? क्यों नौकरी कर रहे हैं? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये, और ये अप्लाइज टू ईच वन ऑफ अस. क्यों आप मेरा भाषण सुन रहे हैं? नौकरी, पैसे के लिए, फैमिली के लिए, टू हैव अ सस्टेनेबिलिटी, टू हैव अ गुड स्टेटस, गुड स्टैचर, सिक्योर्ड लाइफ, रिस्पेक्ट. यस और नो? दैट इज द बेसिक फंडामेंटल पार्ट. नो, क्या हम इसलिए नौकरी कर रहे हैं कि लोगों को अकाउंटेबल बनाएं या पनिश करें? एनी वन ऑफ अस इज डूइंग फॉर दैट पर्पस. वी आर ऑल ऑन द सेम साइड. नो, everybody in this room, and it will apply to everyone in the bank, each, whether the person is a PN or a ED or an MD. yes or no? तो अगर वो फंडामेंटल पॉइंट सही है जो मैंने बोला, अपने स्टाफ को फ्री करिए. इसीलिए हमने वो 240 डेज को कंप्रेस जितना कर सकते थे टेक्नोलॉजी के हिसाब से 50 डेज हमने सोचा है. आप लोग कोशिश करिए और कम करिए, सबसे अच्छा है. Are we together on that point? Let the sword not be hanging on anybody. Free them. Let them take decisions towards business. Let them take business decisions towards business growth. That is the purpose for which we are doing. Then only the bank is strong, bank grows. We have respect, we have self-respect, we have stature, everything. Yes or no? तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टाइमली क्लोजर ऑफ स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पे, टाइमली क्लोजर ऑफ एनी irregularities pointed out through any of the audits. Do it. And when I'm saying this, there will always be black sheep. हमारे बैंक में भी कुछ ब्लैक शीप होंगे. तो मैंने जब शुरू में एक वर्ड बोला था डिसिप्लिनरी, where you may be a disciplinary authority. Some cases you will not be a disciplinary authority, but definitely your observations, your views may be asked for. I come back to this picture. जो ब्लैक शीप है, जो हरी घास है उसको रखिए, जो वीड है गार्डनर की तरह निकाल के बाहर कर दीजिए. अगर गार्डनर जो है, माली जो है, हम समझते हैं ना वीड, अरे नहीं वीड को छोड़ दो, मर जाएगा बेचारा, जीव हत्या हो जाएगी, तो सभी कुछ वीड बन जाएगा, फिर आप वो लेफ्ट में हो जाओगे.
Be very clear. No mercy for anybody who is defrauding my bank. और ये भी एक recent case आया है. I was very clear. My circle head was delaying suspension. मैं संजीवन जी को यही बोला, उसको अल्टीमेटम दे दो आज का 5 बजे तक का, नहीं होगा तो 5:05 पे उसको सस्पेंड करो सबसे पहले. And when I am saying this, I am putting a fear in your mind purposely. We are there to support, we are there to protect mistakes. We are not there to support anybody who is defrauding the bank. Traitors can never be protected, should never be protected, and be ruthless. अगर आप ज्यादा गुडी गुडी रहोगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बचेगा. हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है अपने 1,05,000 स्टाफ और उनकी फैमिली के प्रति. जिसने फ्रॉड किया है वो उसकी इच्छा थी. आर वी टुगेदर ऑन दैट पॉइंट? प्लीज बी रूथलेस. वेयर यू आर नीडेड, रिक्वायर्ड टू बी रूथलेस. It will not be in every case. Rest assured. मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आपको कभी जरूरत ना पड़े. प्रार्थना तो यही है, बट हमको सबको पता है कभी ना कभी कोई ना कोई आपके पास ऐसा केस आएगा. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर फोकस शुड बी सेविंग द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट वन इंडिविजुअल. Am I making myself very clear? Am I making myself very clear? And that is why I have come back to this picture. Because it is not only in terms of processes or procedures. As a leader, it is more in terms of demonstration. ये जो एक स्लाइड है आपके लिए एक बहुत ही बड़ी बेसिक स्लाइड है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है. You have conceptual thinking, knowledge, skills, your ability to plan, your ability to visualize, your ability to think of the future. And then those are technical skills. Knowing the circular, knowing the F2, F4, F10 commands, knowing इंश्योरेंस करना है तो कितना परसेंटेज करना है, knowing यूसीपीडीसी के क्लॉज नंबर ये कितनी है, यूसीपीडीसी क्या बोलता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोज आर द टेक्निकल स्किल्स. जब तक आप नीचे से ऊपर आए हो, सो व्हेन यू आर एट द लोअर लेवल्स, इट इज द टेक्निकल नॉलेज विच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर यू. But as you move up the corporate ladder, as you move up the corporate ladder, some of you are AGM at this level, some of you are a DGM at this level. And as you move up the corporate GM, CGM, ED, MD, the level of conceptual knowledge, thinking, skills, that segment continues to increase. Technical knowledge तब भी चाहिए, but the quantum of technical knowledge required in terms of nitty-gritties is reduced. This is a very fundamental aspect of leadership.
And as leaders, circle heads as leaders, use this. ये डायग्राम मुझे किसी किताब में नहीं मिला है. लेट मी जस्ट शेयर दैट पार्ट ऑन अ पर्सनल नोट. ये डायग्राम जब मैं 1 to 2 की तैयारी कर रहा था, पीएनबी में ही था, अगर आपको मेरी हिस्ट्री तो पता ही हो गया, आई वाज इन पीएनबी फॉर लॉन्ग टाइम. 91 to 92 में जब मैं स्केल 1 to 2 की तैयारी कर रहा था, तब आप में से जो अगर उस वक्त पुराने रहे होंगे, तो एक मिस्टर रामामूर्ति थे सेंट्रल स्टाफ कॉलेज में. He just drew this diagram, and that diagram I can share with you became a roadmap for me definitely, and that's why I'm sharing with you as a roadmap. What is the expectation in terms of as you move up in the corporate ladder? What should be your line of focus as a leader? Where you should focus off in terms of your own personality development. So when you are AGM today, how do you become DGM? When you are DGM, how do you become GM? Are you getting my point? And I am linking it to that one book which is there. What got you here will not get you there. पढ़ी है ना वाली किताब, सुनी होगी अगर नहीं पढ़ी है तो. Prepare yourself. So from my domain, I've just moved on to the concept of leadership. It will be a very helpful tool, a very simple slide. सभी लोग ब्रांच हेड रह चुके होंगे, एवरीबडी 100%. और जब आप ब्रांच हेड रहे होंगे, क्योंकि सर्किल हेड आप पहली बार बने हैं, जब आप ब्रांच हेड रहे होंगे तो जिस भी ब्रांच में आपने एज अ ब्रांच हेड चार्ज लिया, तो जो भी कस्टमर है, काफी स्टाफ मेंबर्स भी, साहब आप ही हो, आपसे पहले वाले को तो कुछ नहीं पता था. करेक्ट करेक्ट. एज अ सर्किल हेड ऑल्सो शायद आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया हो अभी तक. साहब जो हो आप ही हो. डोंट गेट कैरिड अवे, डोंट गेट कैरिड अवे. हम और आप आएंगे, कुर्सी में बैठेंगे. जिस दिन आपने कुर्सी में ज्वाइन किया है, आपकी उल्टी गिनती चालू है, मैक्सिमम 3 years. जिस दिन आप पैदा हुए हो, आपकी उल्टी गिनती चालू है, डेट ऑफ रिटायरमेंट इज फिक्स्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डोंट गेट कैरिड अवे. देयर ऑर्गेनाइजेशन विल रिमेन. आप और हम बदल जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन विल रिमेन. सो एज अ लीडर, think long term, think short term and think long term. Both have to be together. When I am using the word think long short term, I am talking of 30 जून का टारगेट आ रहा है, मैं कैसे टारगेट पूरा करूंगा. Are you getting my point? क्योंकि टारगेट अचीव करना कंपल्सरी, मैंडेटरी. Then only you will get recognition for moving onwards. सपने नहीं देखने हैं, शॉर्ट टर्म, बट थिंक लॉन्ग टर्म ऑल्सो. इज वाई दिस कंसेप्चुअल एंड टेक्निकल रिमेन्स. सो इफ यू आर एट दिस पॉइंट, विच मोस्ट ऑफ यू आर somewhere around here, so the technical and the conceptual, are you getting my point? There is more or less an equal emphasis. You are getting my point? Think short term, but then think long term. And when I am using the word long term, sustainability of the organization. As a leader, mentoring, grooming, guiding,
एक वर्ड यूज होता है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग जो वर्ड नॉर्मली एचआर में यूज होता है वो बड़ा ही रिस्ट्रिक्टिव वे में यूज होता है, इन द सेंस ऑफ फाइंडिंग अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, कि भाई ये अगर रिटायर हो रहा है या इसका ट्रांसफर हो रहा है तो किसको बैठाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट व्हेन आई एम डिस्कसिंग हियर इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप टू यू, that aspect of succession planning is required and it's short term. It is required, please do that, but it is short term. However, what I am discussing just now is mentoring, grooming, guiding, succession planning, long term. हम और आप नहीं रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। तो आज जो स्केल 1 है आपके यहां, क्या आप उसको सही मार्गदर्शन कर रहे हो? Are you getting my point? जब आप ब्रांच हेड थे, आपको देखने वाले डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांच 4 लोग थे, 10 लोग थे, कस्टमर आपके 100 थे, 2000 थे। Are you getting my point? Now when you are circle head, आपको देखने वाले आपको खुद नहीं पता कितने हैं। So are you setting the right example in terms of your behavior, in terms of your body language? हमने भी उस अपने दिन देखे हैं ना, जब आप ब्रांच हेड थे या नहीं भी थे तो आप ब्रांच में थे, तो रीजनल हेड आए, अरे वो तो इनके ऊपर देखो, उनका मुस्कुरा के गए, ये इनके, यस और नो? इंटरप्रिटेशंस, यस और नो? करेक्ट नो? अगर उन्होंने ऐसे आंखें दिखा दी, अरे तो इनसे नाराज होके गए, यस और नो? अब आज उस पोजीशन पे हो। सो व्हेन आई यूज द वर्ड बॉडी लैंग्वेज, आई एम यूजिंग इन दैट सेंस। इट इज अ रोल, डोंट गेट कैरिड अवे कि साहब आप ही हो। आपसे पहले भी थे, आपके बाद भी होंगे। इट इज अ रोल, एंड इट इज अ रोल विच हैज सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, and it is a role where you, what are your value systems, what are your principles in life, what is the expectations that you are setting, and in that process what is the example you are giving for your juniors. तो जब मैं शॉर्ट टर्म बोल रहा हूं जून और मैं लॉन्ग टर्म एक वर्ड यूज कर रहा हूं, so let me use the word, what is your legacy? What is the legacy you are going to leave? Don't get carried away by that short तारीफ। कोई कॉलर ऊंचा करने का जरूरत नहीं है। वो कॉलर अगर एक्चुअली जेन्युइनली ऊंचा करना होगा तो आपके जाने के बाद 10 साल बाद, 20 साल बाद, उस वक्त कोई आपको व्यक्ति याद करेगा, तब आपका जेन्युइन कंट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज हैव दैट लॉन्ग टर्म विजन इन योर माइंड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What is the legacy? More important, what is the culture you are leaving behind in the organization? Are you leaving a culture of openness? Are you leaving a culture of transparency? Are you leaving a culture where everyone is happy to come to the bank? Are you leaving a culture where people are not afraid to speak up? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस अपने सीनियर से? यही है या आपकी एक्सपेक्टेशन है मेरा सीनियर खूब चिल्लाए मेरे ऊपर? है ये एक्सपेक्टेशन? क्या एक्सपेक्टेशन है? योर सीनियर शुड गाइड यू, प्रोटेक्ट यू, कहीं गलती हो गई तो काउंसिल यू, और गलती होगी रेस्ट एश्योर्ड। समुद्र में फेंक दिए गए हैं, थोड़ा हाथ पांव चलाओगे, थोड़ा 2-4 बार डुबकी भी खाओगे, 2-4 बार पानी भी जाएगा गले के अंदर, थोड़ा खारा पानी का आनंद भी आएगा। अगर आपने कभी डाइविंग वगैरह करी हो तो बड़ा आनंद आता है।
फिर आप ऊपर निकल के आओगे। दैट इज योर एक्सपेक्टेशन, यस और नो? योर जूनियर्स हैव द सेम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। प्लीज बी वेरी क्लियर, योर जूनियर्स हैव द सेम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। You are the MD and CEO of your circle. Short term, yes. Budgets, yes. March budget, yes. कोई डाउट नहीं है। Long term, legacy, culture. Long term, एक वो गाना सुना है ना, बस यादें, पुरानी जीन्स, बस यादें, सिर्फ यादें रह जाती हैं। आप क्या यादें छोड़ के जाओगे? और आपकी उल्टी गिनती ऑलरेडी काउंटेड है। क्या यादें छोड़ के जाओगे? अच्छी यादें छोड़ के जाओगे, अच्छे कार्य करके जाओगे। अच्छी यादों का मतलब मैं कभी भी गुडी गुडी नहीं बोल रहा हूं। अच्छी यादों का मतलब मैं गुडनेस से बोल रहा हूं। गुडी गुडी और गुडनेस में फर्क है। अल्टीमेटली हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बैंकिंग रिलेशनशिप से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब हम सब साथ मिलके अच्छा कर रहे हैं और मेरा बैंक अच्छा कर रहा है तो हमारे रिलेशंस हमेशा अच्छे होंगे। सो गुडनेस। क्या जब आपने ज्वाइन किया वर्सेस जिस दिन आप जाओगे, बिल्कुल क्लियर है। The graph should be an upward graph. You should leave an upward graph when I am using the word, not only quantity. Definitely in terms of your targets, your achievements, which is an upward graph of quantity. But I am bringing the element of interpersonal relations. I am bringing a quality of improvement in legacy, improvement in culture, encouraging people. A good leader is one who creates more leaders. How many more leaders did you create when you leave? During that process, day you are joining, day you are leaving, how many more leaders you created? Which means आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और कितना सुदृढ़ किया है। Are we together on that point? I'll stop here, and anything, whatever I have said, whatever I have not said, most welcome. If you have any questions, anything you'd like to share, most welcome. माइक है हमारे पास? एक बार आप अशोक यादव, सर्कल एट बिजनौर सर। सर्किल एट बिजनौर, यादव जी। यस यस सर। सर जैसे आपने स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पोर्टल के बारे में बताया ना, तो हमने यूज़ किया है, बट एक सबमिशन था सर, मे बी आपका ठीक हो सकता है सर वो, बट उसमें सर कहीं जैसे ब्रांच ने जो S1 डाल दिया, उसके बाद करेक्शन मॉडिफिकेशन का कोई चांस नहीं है। हमने पर्पसली नहीं रखा है, एट ब्रांच लेवल नहीं रखा है हमने। फिर सर्कल ऑफिस लेवल भी नहीं है सर, ना जेडो लेवल पे है सर। मतलब Circle मेरा office में नहीं सबमिशन ये था कि सर अगर वो कोई गलती है तो रिवर्ट हो जाए सर। अपने कमेंट्स डाल सकते हैं वो, क्योंकि हमने पर्पसली एडिट की वो हटा दी थी। नहीं तो हमारे लोग भी ज्ञानी लोग हैं ना, फिर वो बाद में और वो डेट स्टैंपिंग के इश्यूज आ जाते हैं। वी वांट पीपल टू डू द राइट थिंग एंड एटलीस्ट सोच समझ के वहां पे रखें। राइट सर, आई थिंक, बट उसके अलावा कमेंट डालने का ऑब्जर्वेशन का है, सो दैट दैट ऑडिट इज अवेलेबल टू अस। अपने कमेंट के साथ आप रेकमेंड कर दीजिए। मतलब सर पर्पसली वी हैव केप्ट दैट, नहीं, सो लीव मेरा एक सबमिशन ये था कि सर जैसे मैनुअली इंटरफेयर है तो कहीं ना कहीं गलत कुछ डल गया, तो उसका एक रिवर्ट का ऑप्शन जेडो को मिल जाए कि अगर कुछ गलत डाला है तो हम उसको सही कर सकें। एज ऑफ नाउ जो डिस्कशन में बात आ रही है, वी हैव पर्पसली केप्ट अ रिमार्क्स कॉलम देयर। ओके सर, प्लीज डू दैट। वी डू नॉट वांट ओवर राइटिंग्स। ओके, थैंक यू सर। And when you say this, quality as a word, let me also talk. Zero error is a myth, but zero error is definitely an aspiration.
आई हैव सेड बोथ द थिंग्स। आप भी जीरो एरर और सब शब्द सुने होंगे आपने। आई एम स्ट्रेट अवे काउंटरिंग इट इज अ मिथ, बट एस्पिरेशन शुड ऑलवेज बी जीरो एरर। अब ये स्टाफ अकाउंटेबिलिटी जैसी आप बात बोल रहे हो, पॉइंट वेल टेकन, वी हैव डेफिनेटली पर्पसली नॉट केप्ट एन एडिट देयर। कृपया अपना जो भी आपके यहाँ डीलिंग ऑफिसर्स होंगे उनको बोलो देख के समझ के सही टाइपिंग करें। वहां पे हम लोगों के करियर से डील कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसमें तो गलती मत करो भाई। आप कुछ कह रहे थे इधर, आप कुछ कह रहे थे, माइक दे दीजिए ना, एक मिनट माइक ले लीजिए, लेट एवरीबडी हियर। सर मैं सेल्फ अजीत कुमार मेहर, सर्कुलर संबलपुर। सर्कल हेड संबलपुर सर। संभलपुर। सर बोलिए बोलिए। इसमें सर जो एडिट वाल बोल रहे थे, बेसिकली बहुत सारे डाटा वो छोड़ देते हैं ब्रांचेस, तो उसी के लिए सर ने जैसा बताया रिमार्क्स कॉलम पे वही सर्कुलर। अगली बार से उनको सिखाओ, बोलो अगली बार डेटा मत छोड़ो। सर एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ये तो चलता रहेगा, वी विल नॉट डू दैट एडिट, आई एम क्लियर ऑन दैट। सर Ask them one time mistake, next time when it comes, it has to be perfect. That is your role. Otherwise, this becomes a never ending. Everybody is trying to reinvent the wheel. We don't want reinvention of the wheel. और जब आप ये बात बोल रहे हो, see, let me also point out, जो 240 दिन पहले लग रहे थे या जो अभी 50 दिन हम बात कर रहे हैं, उसको और कम कर सकते हैं, लेकिन हम सबको मिलके करना पड़ेगा। ब्रांच हेड क्यों नहीं सही काम करता भाई? क्या उसको नहीं चाहिए हमारे बाकी साथी बचे रहें? इट्स अ कल्चर इशू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेवलप अ कल्चर वेयर वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। उसको बोलो सही काम करे, सही डेटा डाले, बस बात खत्म। एक बार गलती करिए, नेक्स्ट टाइम आप काउंसिल करो, उसके बाद आवाज तेज करके बोलो, आंख दिखा करके बोलो। उसके बाद भी नहीं होता, देन आई एम वेरी क्लियर ऑन बीइंग रूथलेस, because at some point of time as a leader, no, there is a word called demonstrative action. Take that demonstrative action. वो demonstrative action एक ही के साथ होता है demonstration लेने के लिए। That will establish you as a leader who is not afraid of taking tough decisions. ईश्वर ना करे, मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आपको वो काम ना लेना पड़े, but then be prepared for it. Ultimately, only thing matters in life is the organization. Only thing matters in the life is the country. पहले मेरा देश, फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन। Be very clear about it. और कोई बात? किसी और को मोस्ट वेलकम। सर वो माइक ले लीजिए। हाँ सर, मेरा नाम राजकुमार बैठिए है। बैठिए, आराम से बैठिए प्लीज। मैं सक्रिय टेढ़ी उत्तराखंड। टेढ़ी। यस सर। आपने अभी बताया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अगर फ्रॉड करता है तो वी हैव टू बी रूथलेस, पर समटाइम्स मैंने देखा है ऐसा कि सर्किल ऑफिस लेवल पे हम लोग डिसीजन लेते हैं, पर व्हेन यू गो टू अपील तो उसको बहुत ही मिनिमम सजा दे के छोड़ दिया जाता है। अब दोबारा वो जब सिस्टम में आता है, अगेन ही स्टार्ट्स डूइंग द सेम थिंग्स। तो सर इस पे थोड़ा चेक लगना चाहिए सर। पॉइंट वेल टेकन। क्या होता है, there is always a process followed. Let me just discuss that point. The process includes concept of appeal, concept of review, and the authorities who are in appeal reject हो गई, going for review, the authorities sitting there, they may have some more things in mind. I am not justifying accepting or rejecting. It is their discretion on case-to-case basis. Your role is to play your role with a very clear conscience. Are you getting my point? Rest assured, when it goes to the appellate authority, who would be much more senior than the disciplinary authority, and if appellate authority is not accepting, it goes to the reviewing authority, they would be much more senior, maybe it's a committee, and they are in their full discretion and authority to take a particular decision. We need to honor it. We have a, when I say this, एक चीज बड़ा important है लाइफ में याद रखिएगा, we have a right to disagree. जब मैं आपसे बोल रहा था ना, are you leaving a culture of transparency, people are ability to speak, open,
suggest, it's very good. That also includes a right to disagree. Disagreement also gives you a new perspective. But right to disagree does not bestow a right to disobey. Are you getting my point? तो अगर आपको सक्सेसफुल लीडर होना है, अगर आपको सक्सेसफुल लीडर होना है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ड होता है डेविल्स एडवोकेट। कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी व्यक्ति होने चाहिए जो आपको, जो भी आपकी विचारधारा है, जो भी आपका काम करने का सोचना था, क्योंकि आप पावर पोजीशन में बैठे हो तो रेस्ट एश्योर्ड साहब आप ही हो, तो आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति जो आपको दूसरा पक्ष भी दिखाए। राइट टू डिसएग्री, it will help you in taking a more holistic view and a more holistic decision. लेकिन जो डिसीजन हो गया एक बार, जो भी डिसीजन हुआ, हो सकता है आप अपने पहले जो भी आपका विचार था, जो आप डिसीजन लेने जा रहे थे, उसी को लेते हो सकता है ये डिफरेंट व्यू के आने से आप अपने डिसीजन को मॉडिफाई कर देते हो। जैसे ही आप मॉडिफाई करते हो, जो पहले लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, हो सकता है उन्हें लगता है कि उन्हें आपके डिसीजन यस और नो से नहीं मतलब है, उन्हें तो मतलब है अरे साहब तो उसकी तरफ जाने लगे, तो दे मे स्टार्ट क्रिएटिंग सर्टेन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Whatever decision through the process you take, once the decision is taken, then there is no right to disobey. That is official decorum. जो आपने डिसीजन ले लिया, तो आपके जूनियर्स का राइट टू डिसएग्री वहां पे खत्म हो गया। एक बार डिसीजन हो गया, जब तक डिसीजन नहीं हुआ देयर इज अ राइट टू डिसएग्री। एक बार डिसीजन हो गया तो उनका राइट टू डिसएग्री इज ओवर एंड देयर इज नो राइट टू डिसओबे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो डिसीजन है दैट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड इन द राइट स्पिरिट, इन द राइट मैनर in which you as a leader have told to be done. And when somebody senior to you take a decision, till the decision is under consideration, till there is a discussion going on, each one of you has a right to disagree. ऐसे ही organizations grow करती हैं. Evolutionary growth of organizations only happen when there are people who bring different perspectives. Are you getting my point? And rest assured, आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा अभी तक, और ऊपर जाएंगे क्योंकि पिरामिड बहुत स्टीप है, करेक्ट नो? तो फॉर यू टू बी मार्क्ड आउट बाय योर सीनियर, वन इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, टारगेट्स अचीवमेंट, जो एमडी ने डायरेक्शन दिया है, housing loan leads, etc., etc. So one is that part, have you performed, have you complied, have you completed? And second way of marking out as a leader is when 50 people, 100 people are sitting, your communication, your suggestion, your query, are you getting my point? And people who are senior, rest assured, on the basis of that one question, the way it is framed, the language, the tone can mark you out. That is again a very important aspect of leadership. So from your question, I've just moved on to a different aspect. That helps you to perform better. And ultimately our common objective is a stronger bank, a stronger organization, a healthier organization, a happier organization. यही तो ऑब्जेक्टिव है ना, इसीलिए तो हम लोग आते हैं, yes or no? Anybody else? हेलो सर, दीपक आचार्य फ्रॉम दुर्गापुर सर्किल। दुर्गापुर। वन थिंग जो अभी आपने कहा ओएसएस के बारे में, उसमें मुझे एक चीज़ जानना था कि उसका कोई इस तरह का एमआईएस है क्या, कि कोई पर्टिकुलर इरेगुलरिटी जो बहुत क्रिटिकल हो सकती है और बार बार रिपीट हो रही है, जो अभी बात हुई थी,
बार बार रिपीट हुई, तो हम लोग भी अपने लेवल से मॉनिटर करें कि वो कौन सी ब्रांच है कि सेम रेगुलरिटी बार बार वो रिपीट कर रही है और टाइमली हम उसको मॉनिटर करें। दूसरा बोलिए, एक और संजीवन छोटा सा एक और सवाल था सर इसमें, माइक दे दीजिए। कि पिछले फरवरी या मार्च में आपके एचओ से एक लिस्ट आई थी जिसमें कुछ स्टाफ के अकाउंट्स थे जिसमें डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट से पैसा आया था। तो उस तरह का कोई रिपोर्ट हम सर्किल पे कर सकते कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस था। हमने 2 केस को एक्शनेबल बनाया भी था कि मतलब उनका रिप्लाई जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो वो चीज़ें हो तो सर मेल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने में फ़ायदा होगा। थैंक यू। देखिए, पहला वाला जो प्रश्न है कि ओएसएस की रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें मल्टीपल टाइप की रिपोर्ट्स हैं। आप पर डे किस तरह के अलर्ट आ रहे हैं, इस मंथ में किस तरह के अलर्ट आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टाफ से रिलेटेड कितने अलर्ट आ रहे हैं, ये आप अगर आप नहीं जानते हैं कहाँ से मिलेगी, तो आप एक बार oss@pnb.co.in पे डाल दीजिए, वो रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, है ना। और दूसरा आपने क्या बोला? हाँ, वो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यानी ओएसएस अलर्ट उनके आते हैं, जैसे बीच में सर ने जो जिक्र किया, उस पर्टिकुलर स्टाफ के एक अलर्ट पिछले 11 महीने तक आया। अल्टीमेटली फ्रॉड होने तक 11 बार उस अलर्ट को सर्कल ऑफिस से बंद किया गया। वो अलर्ट क्या था कि यानी हमारा एक चेक है स्टाफ के अकाउंट में कि अगर 5 लाख से ज़्यादा क्रेडिट उसके अकाउंट में आ रहा है तो अलर्ट आता था। तो 11 महीने तक उसके अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा क्रेडिट आता था हर महीने। और उस अलर्ट को बड़ा कैजुअल वे में, जैसे सब बंद करते हैं ना, टॉक टू स्टाफ, ही टोल्ड हिज फादर हैज़ गिफ्टेड मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, और ये 11 महीने तक लिखा गया और उसको अल्टीमेटली 11 महीने तक बंद कर दिया। जब हमारे पास ये अलर्ट आया तो हमने बोला, सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर बोला कि आप पता करिए कि उसका मकान बन रहा है क्या, तो मकान ही नहीं बन रहा था। यानी क्वेश्चन यहाँ पर ही आता है कि अलर्ट जब आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल बिना इन्वेस्टिगेट के उसका अकाउंट ही देख लेते हैं ना। आपके पास ये अलर्ट आ रहा था कि इतना पैसा आ रहा है, तो ऐसा एक केस में नहीं, यानी कम से कम 10 केस ऐसे हुए हैं यहाँ पे बार बार अलर्ट आ रहे थे और हर बार उसको कैजुअली बंद किया गया। तो आप जो अलर्ट आ रहे हैं बस उतने को ही इंश्योर करिए। और अभी क्या हो रहा है ना, मॉनिटरिंग नहीं है उसकी, वो एक किसी चीफ मेयर को दे रखा है, वो अपना टॉक टू स्टाफ एंड फाउंड ओके, वो 99% अलर्टों में यही लिख रहा है। तो अलर्ट का नेचर देख के आप तय करिए कि किस तरह के अलर्ट हैं। यानी बहुत बड़े बड़े अमाउंट के भी हुए हैं, यानी मैं तो अगर जिक्र करूंगा तो दिन भर सुना सकता हूं, लेकिन कंसर्न एक ही है कि आपको स्टाफ के अकाउंट में जो अलर्ट आ रहा है उसको सिंपली बोलिए कि आंख मीच के मत बंद करिए, उसका देखिए कि उस यानी एक बार सरसरी नज़र से देख लेगा ना कितने स्टाफ के अकाउंट में ऐसे अलर्ट आते हैं, क्योंकि पर ब्रांच 10 अलर्ट का एवरेज है। महीने में करीब 80,000 अलर्ट आते हैं महीने में, है ना। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं है, लेकिन अगर उसको रेगुलर बेस पर देखेंगे तो फिर आपका ये क्वेश्चन यानी कम से कम ऐसे अवॉइड हो जाएंगे। कम से कम मैं आपको ये बता दूं 80-90 फ्रॉड अवर्ट हुए हैं जो हमारे रिकॉर्ड में है। वो अवर्ट कब हुए ना, जब हमने यहाँ पे हेड ऑफिस में देखा और एनालिसिस किया, हमने बोला आप देखो, जैसे आपने बोला ना कि स्टाफ के अकाउंट में पैसा जा रहा था, तो 240 स्टाफ के अकाउंट में लोन का फर्स्ट डिसबर्समेंट गया। उसमें से जब हमने बोला कि जा रहा है, आप लोगों ने उसको जब देखा, जबकि अलर्ट आ रहा था, ऐसा नहीं है कि अलर्ट नहीं आ रहा था, उसका अलर्ट है, लेकिन आपको यही देखना है कि अलर्टों को आँख मूछ के बंद नहीं करना है। कम से कम 10-11 हज़ार अलर्ट इस तरह के आए जो हमने लोगों को बताया और बाद में पता चला कि वाकई थे, क्योंकि हम तो जब बोलते हैं ना, हम तो इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है। तो चलिए, एनी अदर पॉइंट? सर, संजय गर्ग फ्रॉम ईस्ट दिल्ली। फ्रॉम ईस्ट दिल्ली सर्कल। ईस्ट दिल्ली, बोलिए। सर, ओएसएस का मेकर जो होता है, जिसने ट्रांजैक्शन करी, दैट पर्सन कैन क्लोज द ओएसएस अलर्ट। अगर मेकर चेकर इसमें डल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओएसएस अलर्ट का क्लोजर तो ब्रांच में है ही नहीं, नंबर 1 है ना। सर, रिप्लाई उस पर डलता है, रिप्लाई तो सेम पर्सन डालता है ना। डालता है, लेकिन अगर वो क्लोज तो सर्कल ऑफिस में है ना। सर, मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया और मैंने ही डाल दिया कि मैंने मोबाइल नंबर ठीक चेंज किया। सर्कल ऑफिस को कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल ऑफिस को यही तो देखना है। सर, अगर ब्रांच में दूसरा चलिए, we'll stop here. हाँ, You have a right, but we'll stop here. There will always be any other question?
अश्विनी सर फ्रॉम जबलपुर डिफरेंट सर। क्वेश्चन, हाँ जबलपुर ओएसएस से सर। बाहर निकल के बात करते हैं। एक उससे का छोटा सा है सर, अच्छा, फिर से जो थोड़ा हमारे- माइक में ठीक से बोलिए। जो हमारे हाई रिस्क अलर्ट हैं, जो बार बार सेम नेचर के अलर्ट आते हैं और बंद हो जाते हैं, क्या इनकी कोई कंसाइज रिपोर्ट आ सकती है? जो कि क्योंकि सर्कल ऑफिस लेवल पे भी ये चीफ मैनेजर ही बंद कर देते हैं, ताकि वो सर्कल हेड के पास आ सके ऑन सम रेकरिंग बेसिस। सर्कल ऑफिस में तय कर लीजिए कि वो चीफ मैनेजर बंद ना करे, आप उसको बोल दीजिए। थोड़ा अपने बंद तो ऑफिस में भी कंट्रोल कर लीजिए, सर, सब बंद तो कुछ वही करेगा। हेड बंद तो ऑफिस भी सब वही भेज देगा करेगा, तो फिर लेकिन कोई अगर और उसको रिपोर्ट बंद कोई कर ऐसी देगा। निकल जाए सिस्टम से। चलिए ठीक है, रुक जाइए। एनी अदर पॉइंट ऑन अ डिफरेंट नोट दैट वी हैव डिस्कस्ड? बिकॉज़ देयर इज नो एंड टू दिस डिस्कशन, देयर इज नो एंड टू, देयर विल ऑलवेज बी समथिंग मोर। वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। एनी अदर पॉइंट एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। सर एक नो डाउट हम सारे अभी नए नए सर्कल हेड बने हैं, तो शायद हमें अभी टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू है। हर रोज़ 2-2 3-3 वीसी हो जाती है, कभी एचओ से कभी इससे, तो हम कस्टमर के पास तो जा ही नहीं पाते, ब्रांच विजिट करने जा ही नहीं पाते, तो ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है सर। आनंद लीजिए। जब ब्रांच हेड होंगे ना, याद करिए, वो जब तक ब्रांच में 3-4 चीज़ें ऑफिस में ना हो गई हों उस दिन, और जब तक आप घर जानते हो कम से कम 10 चीज़ें कुछ पेंडिंग दिमाग में टेंशन की ना हो, तब तक नींद नहीं आती थी। करेक्ट नो? जिस दिन कुछ नहीं हुआ ब्रांच में, उस दिन लगता था यार कुछ गड़बड़ है आज तो नींद नहीं आ रही। करेक्ट? तो आनंद लीजिए। और ये जो आपका पॉइंट है, ये हर बार डिस्कस में आएगा। बट होता क्या है, एज बैंकर्स, स्पेशली एज पब्लिक सेक्टर बैंकर्स, ईच एंड एवरी सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एक सेगमेंट को पिकअप करके बोलो कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कम इंपॉर्टेंट है, तो वो जिसको आपने आज कम इंपॉर्टेंट सोचा है, कल को वही आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफ क्रिएट करेगा। तो मल्टीटास्किंग हम सब लोग यूज्ड टू ही हैं, और अभी तो टेक्नोलॉजी भी परमिट करती है। जब तक कोविड नहीं हुआ था, वी वर नॉट वेरी प्रोफिशिएंट विद द टेक्नोलॉजी। अभी तो सब एक्सपर्ट हो गए हैं, वेबएक्स, टीम्स, हैंगआउट, करेक्ट नो? और सबसे बढ़िया तो व्हाट्सएप है ही है। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करिए। आनंद लीजिए। सर मेरा सिंपल एक सजेशन है, या तो मतलब फर्स्ट हाफ में हो वीसी या सेकंड हाफ में, क्योंकि हमने अगर कस्टमर को टाइम दिया है, 4 दिन पहले मैंने उससे अपॉइंटमेंट ली है और अचानक सुबह आ गया कि भाई आज तो 2 बजे वीसी है, तो वो कस्टमर ने भी अपना टाइम दिया हुआ है, फिर वहाँ देखिए उसमें मैं आपको ये disturbance बोलूँगा है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि हम सब लोग जहाँ तक आप पहुँचे हो, काम करके मेहनत करके पहुँचे हो, जो आपसे ऊपर हैं वो भी उसी तरह से मेहनत करके पहुँचे हैं, और अल्टीमेटली सबका ऑब्जेक्टिव कॉमन है, विच इज स्ट्रेंथनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सबका ऑब्जेक्टिव कॉमन है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, अब सडनली आपकी वीसी आ जाती है, एक शेड्यूल्ड वीसी होती है, एक अनशेड्यूल्ड होती है। अब इनसे पूछिए, अभी सडनली यहाँ बैठे हुए तब तक कोई मेल आ गई कि डीएफएस के सेक्रेटरी साहब ने कोई वीसी बुला लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जाएंगे यहाँ से उठ के इमीडिएटली वीसी, और वो वीसी अभी 5:45 पे मान लो शुरू होती है, जस्ट एज माय एग्जांपल आई एम टॉकिंग ऑफ हैंड, 5:45 पे शुरू होकर 6:15 खत्म होती है। तो जो डायरेक्शन वहाँ से आया, आई एम जस्ट टेकिंग एन ऑफ हैंड एग्जाम्पल, इमीडिएटली, अब जैसे ये 2000 वाली बात थी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इमीडिएटली इफ ही इज द इंचार्ज, 6:15 वीसी खत्म हुई, 6:30 को ये सबके साथ वीसी करेंगे, बिकॉज ही हैज नो चॉइस बट टू इमीडिएटली गेट इट इंप्लीमेंटेड डाउन द लाइन। और ऐसा एक डिवीजन नहीं है, सारे ही डिवीजन हैं। उसमें डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी, जैसे मैंने बोला हम सब लोग
अल्टीमेटली कॉमन ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी समझते हैं कि आपकी उस पर्टिकुलर टाइम की अर्जेंसी को, आपकी एज अ लीडर प्रायोरिटाइजेशन की, डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज को समझते हुए जब आप अपने सीनियर से बोलते हो, सर so and so person will sit, I am busy for so and so reason. Are you getting my point? They will accept. Because ultimately objective नहीं है किसी को परेशान करने का, ऑब्जेक्टिव है काम होने का। अब ये यहाँ बैठे हैं, कोई मैसेज आया, सपोज ही इज नॉट एबल टू गो, आई एम जस्ट सेइंग संजीवन जी यहाँ बैठे हैं मेरे साथी, इसलिए मैं एग्जांपल सामने ले रहा हूँ, देन इमीडिएटली इफ ही इज नॉट एबल टू गो, he will send somebody else in his representative so that the VC does not stop. Are you getting my point? That is a part of time management we have all been doing. I am not telling you anything new. Only thing is, now with a different role, the interactions are at a much higher level. Automatically, the expectations are also much at a higher level. So, some difference in the way you have been doing. But simultaneously, rest assured, we all know, as circle heads, you are the ones जो हमारे बैंक को आगे ले जाओगे। आप डायरेक्टली फील्ड से कनेक्टेड हो, आप डायरेक्टली ब्रांचेस से कंट्रोल कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो, गाइड कर रहे हो। इसलिए सिटिंग एट द टॉप हमारे लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट हो बैंक में, जो शॉर्ट टर्म में मेरे जून टारगेट्स भी कंप्लीट कराएगा और लॉन्ग टर्म में जो मैंने कंप्लायंस सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करी वो 2023 में भी एप्लीकेबल है, 2003 में भी एप्लीकेबल थे और 2050 में भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो that's why in my entire discussion I have talked in terms of short term, long term, because you are the ones who will be leaving that legacy, creating that culture. We are all aware of it, and to that extent we have full confidence in you. तो मेरी आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे आए हो, बहुत शुभकामनाएं। अच्छा करिए, सफल होइए, इंडिविजुअली गेट रिकॉग्नाइज्ड in terms of your performance, in terms of developing a more open, transparent, stronger, happier organization. And collectively, as brand PNB, we get much more respect, strength, growth in the society. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय पीएनबी। Thank you so much, sir, for such motivating words. From creating a culture to leaving a legacy behind. It was a great learning experience. I'm sure the goodness has been spread, and so is the corporate call and expectation. Thank you so much once again for addressing all of us. Let's hear it for sir one more time.